नमस्ते। हमेशा खुश रहो बिटियाओं। माई सेल्फ जेवियन डॉक्टर एस बुंदेला, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन एंड मैथडोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी, जयपुर, राजस्थान। प्रोग्राम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर। सेशन प्रोविजन टू ensure quality of secondary education or suggestions to make RAMSA effective. Students, we will discuss both language, first in English, then after Hindi. Let's see. First of all, introduction. An effort has been made to improve the level of secondary education under the RAMSA program. To ensure quality education, quality of teaching process is to be ensured. Provisions to ensure the quality of secondary education is suggestions to make RAMSA effective. One by one. In points, first point is state curriculum and textbooks should be improved at the secondary level. Second point is measures should be taken to improve the curriculum and educational level to increase participation in the learning process and to make all students experience success. Third is room process and school management should be improved. Fourth point is continuous and comprehensive evaluation and testing reforms should be done at the secondary level. Under this evaluation and testing, arrangements related to examination reforms should be made. Fifth is there should be a system of teacher preparation. Sixth is preparation of teacher is necessary for quality in service. Professional training system should be in place. Seventh point is research and monitoring should be done for quality. Eighth point is information and communication technology should be established. And ninth is multi-level guidelines and symbolic reforms and financial standards should be set. And 10th point is transport facilities should be provided to girls. And next point is students, especially girls, should be trained in self-defense. And next is corporal punishment legislation should be abolished. And next is decision should be made regarding school hours and holidays for the convenience of children. And next is comprehensive assessment policy should be
adopted for up to class 8. Also, no student should be stopped till this class on the basis of the success of the exam. And last is multi-point entry policy should be adopted in formal school. This session prepared by 2.0 digital version ज्योति विद्यापीठ विमेन यूनिवर्सिटी जयपुर राजस्थान. लेट्स सी इन हिंदी. लर्नर्स विद्यार्थियों बच्चों, आज का जो सेशन है इसका नाम है माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने संबंधी प्रावधान या रमसा को प्रभावी बनाने के सुझाव. सबसे पहले बात करेंगे हम प्रस्तावना को लेकर. देखिए, रमसा कार्यक्रम के तहत माध्यमिक शिक्षा के स्तर को सुधार करने का प्रयास किया गया है. गुणवत्ता युक्त शिक्षा की प्राप्ति के लिए शिक्षण प्रक्रिया की गुणवत्ता सुनिश्चित करना इस कार्यक्रम का लक्ष्य है. माध्यमिक शिक्षा की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने संबंधी प्रावधान या रमसा को प्रभावी बनाने के उपाय निम्नलिखित हैं. सबसे पहला है माध्यमिक स्तर पर राज्य पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों में सुधार करें. दूसरा, शिक्षण प्रक्रिया में भागीदारी बढ़ाने और सभी विद्यार्थियों को सफलता का अनुभव प्रदान करने के लिए पाठ्यक्रम और शैक्षिक स्तर में सुधार करने के उपाय किए जाएं. तीसरा है कक्ष प्रक्रिया और स्कूल प्रबंधन में सुधार किया जाए. चौथा है माध्यमिक स्तर पर सतत और व्यापक मूल्यांकन तथा परीक्षण संबंधी सुधार किया जाए. इसके तहत परीक्षा सुधार संबंधी मूल्यांकन और परीक्षण व्यवस्था की जाए. अगला है शिक्षक की तैयारी की व्यवस्था होनी चाहिए. उसके प्रशिक्षण की व्यवस्था होनी चाहिए. नेक्स्ट है शिक्षक की तैयारी प्रशिक्षण गुणवत्ता के लिए आवश्यक है. सेवाकालीन व्यावसायिक प्रशिक्षण व्यवस्था की व्यवस्था भी होनी चाहिए. अगला है गुणवत्ता के लिए अनुसंधान तथा निगरानी की व्यवस्था भी हो. अगला बिंदु सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी स्थापित की जाए. नेक्स्ट बहुस्तरीय दिशा निर्देश और सांकेतिक सुधार तथा वित्तीय मानक तय किए जाएं. और अगला है बालिकाओं को परिवहन की सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाए. अगला बिंदु विद्यार्थियों विशेष रूप से बालिकाओं को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण दिया जाए. इसके अलावा अगला है शारीरिक दंड विधान की समाप्ति की जाए. और अगला है बच्चों की सुविधानुसार स्कूल के घंटे और छुट्टियों के बारे में निर्णय लिया जाए. तो बच्चे जो हैं, स्टूडेंट जो हैं माध्यमिक स्तर तक के, उनकी सुविधा के हिसाब से, ठीक है, स्कूल के जो घंटे हैं और छुट्टियों के बारे में निर्णय लिया जाए, जिससे क्या है बच्चों का मनोबल जो है वो भी बढ़ा रहे. और अगला बिंदु है कक्षा 8 तक के लिए व्यापक मूल्यांकन के नीति को अपनाया जाए. साथ ही इस कक्षा तक किसी भी विद्यार्थी को परीक्षा की सफलता के आधार पर न रोका जाए, असफलता के आधार पर न रोका जाए. और इसके अलावा अगला है औपचारिक विद्यालय में बहु बिंदु प्रवेश नीति को अपनाया जाए. ये जो सेशन है वो 2.0 डिजिटल वर्जन ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के द्वारा तैयार किया गया है. आगे से आगे आप
डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ महिला विश्वविद्यालय के द्वारा जो वीडियो बनाए जाएं उनको देखते रहिए, जिससे आप अपना सेशन कंप्लीट कर सकें। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही।